Yes, dear students, we are doing chapter number 3. It's just the recap of what we have done because it is, I picked up a PowerPoint presentation which is nicely made to explain things better. Alright, so this is what is chapter is at a glance. So we will talk about stress, we'll talk about gas, which is general adaptation syndrome, and stressors. Stressors we have already discussed, but I'm just recapitulating. Stressors can be major life events, right, which gives actually stress. They can be a death in the house, or maybe daily hassles of routine, right? So minor, or it could be major. Sources, what are the sources of work, and then high level of stress. These are the just glance of the chapter. And then I'm moving further. uh, the next one here is nature, type, and sources, right? What kind of sources are there which gives us stress, or what is the type of stress? This we've already started in the initial videos. Those two videos I have covered about stress. What is stress? Let's just quickly read so that you can pen down these keywords. It is described as the pattern of responses an organism makes to stimulus events that disturbs the equilibrium. Means anything जो हमारे पीस को या हमारे इक्विलिब्रियम, व्हेन आई से मीन्स आई एम एट अ पीस, सो उसको डिस्टर्ब करे, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस. ओके, और मेरी ability to cope, it exceeds a person's. Actually, these little stresses are important for our life because they teach us many things, how to deal with it, how to cope with it, right? Then comes stress. हमेशा बुरा ही नहीं होता, अच्छा वाला भी होता है. So eustress and distress, ये दो तरह के हैं. Eustress is good for you because is one of the person's best asset for achieving peak performance. अगर आप एंजाइटी थोड़ी बहुत वर्क से रिलेटेड नहीं रखेंगे, जैसे अगर आप टेंशन ही नहीं लेंगे अपनी स्टडीज़ का, तो स्टडीज़ में परफॉर्मेंस इम्प्रूव भी नहीं होगी. ठीक है, सो उसे एक्सीड नहीं होने देना है. एंड मैनेजिंग माइनर क्राइसिस, दैट्स कॉल्ड यूस्ट्रेस. डिस्ट्रेस इज लेटर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से हमारा बॉडी वियर एंड टियर होता है, जिसकी वजह से इट कैन गो नेगेटिव. स्ट्रेन क्या है? इट्स अ रिएक्शन टू द स्ट्रेसर. उस इवेंट की वजह से हाउ डू आई रिएक्ट इज व्हाट इज द स्ट्रेन. ऑलराइट, हैंस सेल, द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, डिफाइन स्ट्रेस. उन्होंने ये इसकी डेफिनेशन दी है, the non-specific response to any demand, that is regardless of the cause. ये आपको as it is learn करनी है. Moving further, this we've already talked about psychological meaning of stress, right? हमारी NCERT बुक के हिसाब से ये हम कर चुके हैं. Psychological meaning of stress was on page number 52. It was given like this only in a box. Causes. कॉज क्या हो सकता है जी स्ट्रेस का? एक्सटर्नल और कुड बी इंटरनल. दिस आई एक्सप्लेन्ड थरली. बायोलॉजिकल, एंड देन इट कुड बी साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू दिस. एंड देन या तो हम कोप कर जाते हैं, डिफेंस करते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो. रिजल्ट क्या होता है उसका? इट इज़ ईदर वी आर एबल टू ओवरकम फ्रॉम इट और वी फॉल इल. ऑल राइट, सो देन आई मूव फर्दर. कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस. ये क्योंकि हमारी बुक में भी लेजरस के नाम मेंशन है कि लेजरस हैज़ गिवन about this cognitive theory. An individual's response to stressful situation largely depends upon the perceived event. आपने उसे कैसे perceive किया, and how they are interpreted or appraised. Lazarus has distinguished between two types of appraisals. ये आपके पास बुक में है, primary and secondary. Primary, you remember, प्राइमरी में हमने 3 चीज़ों के बारे में बात की थी, थ्रेट, चैलेंज और हार्म लॉस. अब इसमें एक एग्जाम्पल हमने लिया है, वो क्या है? सपोज एक बहुत तेज़ बारिश हो रही है. ओके, बहुत तेज़ बारिश. अभी किस किस केस में आपको स्ट्रेस देगी और किस में नहीं? नाउ अ डेज यू पीपल आर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. सो विल दिस रेन गिव यू स्ट्रेस? ऑफ कोर्स नॉट. यू मे एन्जॉय and it is not even harming you. So you might think that the heavy rain is not important because you have no plans to go somewhere outside. Or you might say the heavy rain is good, you are enjoying because you are waking up early,
एंड स्कूल्स है ही नहीं, आप उठ ही नहीं रहे हो सुबह जल्दी और यू आर एंजॉइंग। कब होगा? जब आपने कोई पार्टी स्केड्यूल की है फ्रेंड्स के साथ या किसी ने ऑफिस मीटिंग स्केड्यूल किया है, then the same rain is going to give stress. Now after answering these questions, the second part is primary cognitive appraisal is to classify. अब इसकी ड्यूटी क्या है? अब ये सेम चीज़ को, सेम सिचुएशन को आप उसे एज अ थ्रेट लेते हो, आप चैलेंज लेते हो या हार्म लॉस लेते हो। पहले हार्म लॉस ले लो, बिकॉज आपके बुक में इसे पहले हार्म को दिया गया है। हार्म को हमने उसमें लिखा है कि ये इट इज़ द असेसमेंट of damage. How can you make the assessment of damage? Because you have seen this thing before. Say for example, आप स्कूल जाते हैं और रूटीन में आप स्कूल जा रहे हैं और एक दिन पहले भी बहुत तेज़ बारिश हुई जब आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना था, and you have faced the similar situation before, and that time you could not reach to school and you could not submit your project. But very next day when you reach, your teacher said it's all right, I can understand, it was raining heavily, so you can submit it today. तो अब क्या हुआ? हार्म लॉस में आपने पहले से असेसमेंट लगा लिया, what kind of damage will happen. Will you be in stress then? No, because you have seen the situation before and you know what is going to happen in this particular situation. All right. अच्छा, दूसरा थ्रेट। मतलब थ्रेट क्या हुआ? थ्रेट वो असेसमेंट है जिसमें आपने फ्यूचर डैमेज को पॉसिबली क्या होगा। थ्रेट इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर डैमेज। मतलब मुझे खतरा है कि यार ये अगर सबमिट नहीं हुआ ना, आई एम श्योर मैम इज गोइंग टू डिडक्ट माई मार्क्स। अब ये क्या होगा? थ्रेट ले लिया। थ्रेट कब होगा? जब आपके फाइनल एग्जाम्स है, फॉर एग्जाम्पल फाइनल सबमिशन करने जाना है, वहाँ रिलैक्सेशन का कोई स्कोप नहीं है, एक्सटर्नल्स आए हुए हैं। नाउ द रेन इज हैपनिंग, what will happen? Now you will fall in stress because you can feel the threat that no I have to reach, अगर मैं नहीं पहुंची मेरी फाइल नहीं पहुंचेगी, मेरे मार्क्स नहीं। सो ये भी थ्रेट हो गया। ओके, अ चैलेंज इज ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव थिंग। चैलेंज मीन्स आप उससे हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि आप उससे लड़ सकते हैं, यू कैन ओवरकम विद दिस। मतलब आप में कितनी एबिलिटी है कि आप उससे ओवरकम कर सकें। अब एबिलिटी कैसे होती है? आपका सेल्फ इस्टीम कैसा है, आपका अपने ऊपर भरोसा कैसा है। रेन के केस में तो नहीं आता, लेकिन येस यू नो दैट यू आर गोइंग टू रीच एंड योर फादर सिंग डोंट वरी आई विल मेक यू रीच देयर। ठीक है। या आप इसे चैलेंज ऐसे नहीं ले सकते, चैलेंज तो अपने इंटरनल अपने साथ रिलेटेड है। सो राजे, व्हेन यू सी द स्ट्रेसर एज अ थ्रेट, तो इट यू आर टॉकिंग अबाउट यू कॉज इन फ्यूचर। ओके, मे बी आई विल फेल इन माई एग्जाम्स, माई गेटिंग फायर्ड फ्रॉम जॉब, मुझे तो निकाल ही देंगे जॉब से, तो ये आप थ्रेट ले रहे हो। तो थ्रेट विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव स्ट्रेसर, बट इफ यू टेक इट एज अ चैलेंज यू डेवलप अ पॉजिटिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स। क्यों? बिकॉज यू एक्सपेक्ट दिस स्ट्रेसर टू लीड टू अ हायर क्लास रैंकिंग और अ बेटर एम्प्लॉयमेंट। आप सोचोगे इट्स ओके यार, मुझे जॉब से निकाल दिया, कोई बात नहीं, ये भी मेरे अच्छे के लिए हुआ होगा, एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू फाइंड आउट अ न्यू जॉब एंड इट इज़ गोइंग टू बी बेटर देन द प्रीवियस वन। अब आपने उस सिचुएशन को किस में टर्न कर दिया? एक चैलेंज में। इट्स समथिंग लाइक यू आर नॉट एबल टू अर्न गुड मार्क्स इन द सेमेस्टर एग्जाम। एक तरीका है आप बस हताश होकर बैठ जाओ, नो आई जस्ट कांट डू इट, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं तो फेल हो जाऊंगी, मेरे से ही हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? इट्स ओके, इस बार मेरे साथ हुआ है, नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर दैट दिस शुड नॉट हैपन। सो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपकी कैपेबल पे रहता है, कैपेबिलिटी पे, हाउ डू यू ट्रीट इट। ऑलराइट, मूविंग टू द सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल्स इन्वॉल्व्स दोज फीलिंग्स, आपके उसमें भी है। आप अब इस नाउ व्हाट इज इट? इट इज़ द असेसमेंट ओके ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटीज। यहाँ देखिए ध्यान से, it involves those feelings relating to dealing with the stress or stressor or stress it produces. मतलब how do you deal with it? Okay, how do you cope with it? So better है underline कर लें आप अपनी बुक में। It's the assessment of one's coping ability and the resources whether they'll be sufficient to meet the harm threat. अब आप में कोपिंग करने की बहुत एबिलिटी है बट आपके रिसोर्सेज ही आपके सब उसमें फेवर में नहीं, तब नहीं हो सकता। सो हाउ आर यू एबल टू कोप विद इट? सो इसमें से देखते हैं क्या लिखा है। अटरिंग स्टेटमेंट्स, आई कैन डू इट, इफ आई डू माई बेस्ट, इफ दिस वे फेल्स आई कैन ट्राई अनदर मेथड। सो आप ऐसा करके क्या कर रहे हैं? आप उससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं।
और क्या हो सकती है नेगेटिव स्टेटमेंट? आई जस्ट कैन नॉट डू इट, आई नो आई विल फेल, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज आई बिलीव या तो somebody else's believe that I will not be able to do it, I won't try even. तो ये सब क्या हो गए? लो हो गए, चांसेस आर लो, इंक्लूड्स नेगेटिव सेकेंडरी अप्रेजल. तो सेकेंडरी अप्रेजल में भी दो बातें हो गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव में आपने क्या किया? आई विल बी एबल टू डू इट, आई एम श्योर अबाउट इट. दूसरे में मुझे पक्का पता है मेरे से होगा ही नहीं. तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है. Although primary and secondary appraisals are often a result of an encounter of a stressor, दोनों ही situations में एक stressor है बीच में जो आपको stress दे रहा है. Alright, इसमें हमारे पास इस PPT में ज़्यादा इसके बारे में नहीं है. Before I talk about signs and symptoms, you need to come to page number 54. Alright, क्योंकि यहाँ तक हम पीछे कवर कर चुके हैं. बट yes, 54 पर सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट रो ये हमारा रहता था. तो यहाँ पर हमने बात किया था हाइपोथैलेमस की. ऑलराइट, एंड यू मस्ट हैव सीन हियर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. ऑलराइट, सो जस्ट अंडरलाइन दैट द हाइपोथैलेमस इनिशिएट्स, just understand, hypothalamus initiates action along two pathways. First pathway, automatic nervous system. Okay, अब ये लिखा क्या है? एड्रिनल ग्लैंड के बारे में इसमें लिखा है. एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हैं. यू कैन इवन पेन डाउन दी वर्ड SUPRARENAN, सुप्रारिनल ग्लैंड. सुपीरियर से अटैच्ड है, दैट इज व्हाई वी से इट. ये ना बहुत छोटा सा ट्रायंगुलर शेप्ड का ग्लैंड है. ये हमारी दोनों किडनीज के ऊपर लोकेटेड होता है. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड इज इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स which is very very good for it helps to regulate our metabolisms. इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है. ब्लड प्रेशर का रिस्पॉन्स कैसा होगा टू द स्ट्रेस. अब टू द स्ट्रेस ब्लड प्रेशर का रिस्पॉन्स कैसा होगा, मतलब स्ट्रेस कैसा है, मेरा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये इंश्योर करेगा. और इसके बाकी भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. एक्चुअली जो एड्रिनल ग्लैंड है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स. आपकी बुक में नहीं है बट स्टिल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. दो पार्ट्स का है. एक इज कॉर्टेक्स, वन इज कॉर्टेक्स एंड सेकेंड इज मेडुला. दीज आर टू पार्ट्स विच आर पार्ट ऑफ दिस एड्रिनल. अब मैंने मेन फंक्शन बता दिया. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट हार्मोन्स. ओके, अच्छा, जब ये हार्मोन्स नहीं बनाते तो हम बोल देते हैं जी एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गई है. ऑफ कोर्स व्हेन दे आर, जिसे हम डिजीज बोल देते हैं, उसे हम एडिसन्स डिजीज कहते हैं आई सपोज. राइट, सो इस तरह से इसका फंक्शन है. ओके, अब जो मैंने बताया कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दीज आर द टू पार्ट्स विच डू इट. जो कॉर्टेक्स है वो आउटर लेयर है, आउटर रीजन है बेटा. ये लार्जेस्ट पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का. इसके भी फर्दर आगे पार्ट्स होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, बायो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. मेडुला इज लोकेटेड इनसाइड, ऑलराइट, इन द सेंटर ऑफ द ग्लैंड, एंड इट प्रोड्यूसेस स्ट्रेस हार्मोन्स जिसे हम बोलते हैं ना एड्रेनलिन बोलते हैं, और वो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है. ऑलराइट, सो अब ये इसका फंक्शन कैसे वर्क कैसे करना है इसने. अब जो कॉर्टेक्स है वो हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं. जो कॉर्टिसल है, बिकॉज आपके इसमें हमने बात करा है कॉर्टिसल के बारे में, ठीक है बेटा, तो हम उस पर आते हैं. पहले कॉर्टिसल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है हार्मोन, ठीक है. आप इतना ज़्यादा डिटेल में ना जाइए चाहे, बट बिकॉज द वर्ड कॉर्टिसल इज रिटन इन योर बुक, सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेलिंग. आपके यहाँ लिखा है कि सेकेंड पाथवे में पिट्यूटरी ग्लैंड आता है. टू पाथवेज बोले हैं ना, वन पाथवे में एड्रिनल ग्लैंड आता है और दूसरे पाथवे में पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में है. ओके, अब होता क्या है, एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, हमारी किडनी में हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन. अब ब्रेन ने सेंस किया कि भैया देयर इज सम डेंजर इन फ्रंट ऑफ यू. पिट्यूटरी ग्लैंड ने ये रिस्पॉन्स किसको दे दिया? एड्रिनल ग्लैंड को दे दिया, जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है उससे रिलेटेड. ठीक है, आई रिपीट,
अब एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स in response to signals from the pituitary gland in the brain, all right, which reacts to signaling from hypothalamus, where it is located, brain में. Now this is referred to, अब इससे क्या हुआ, इससे हमारी बॉडी में, all right, this is referred to as the hypothalamic pituitary adrenal axis कहते हैं इसको बायो लैंग्वेज में, but you can leave this as an example for the adrenal gland to produce cortisol. Now what happens? मैं इसको आपको नॉर्मल सी लैंग्वेज में बात समझाती हूँ. ओके, अब हार्मोन क्या किया उसने, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिग्नल दिया कि भैया देयर इज सम प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू. से फॉर एग्जाम्पल सम ओल्ड पर्सन इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट. ओके, अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, दोनों हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कैन सेंस वेदर द ब्लड हैज द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल्स और नॉट. अब होगा क्या, ऐसे समझते हैं. एक ओल्ड मैन है, ही इज़ वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड ही इज़ फेसिंग, he can see that there is a snake just in front of him, a big huge snake. अब उसके ब्रेन ने क्या सेंस किया, इट्स डेंजर, डेंजरस है, तो डेंजर सेंस किया इमिडिएटली. अब ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है हमें पता भी नहीं चलता. अब मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड ने मेरे एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल दिया. मेरे एड्रिनल ग्लैंड ने क्या किया, इट विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेकोलामाइंस. ओके, दैट इज नेम्ड एज, बुक में आपके है एपिनेफ्रिन एंड नॉरपाइनेफ्रिन, जिसे एड्रेनलिन कह देते हैं हम, है ना, उसे कहते हैं नॉर एड्रेनलिन. अब इसने मेरी ब्लड स्ट्रीम में उसने रिलीज कर दिया. अब होगा क्या, अब इसके रिलीज होते ही मुझे डिसीजन लेना होगा, फाइट और फ्लाइट. ओके, फाइट और फ्लाइट, राइट. अब ये करता क्या है, इसने मेरी सारी एनर्जी, अब मुझे पता है कि मैं, इट विल बी अ स्टूपिडिटी इफ आई स्टार्ट फाइटिंग विद अ स्नेक. इडियट लोग ही करेंगे, भाई फाइट क्यों करना है, फ्लाइट लो. अब फ्लाइट लेना है, ही इज एन ओल्ड मैन, ही कांट इवन वॉक. तो ये जो हार्मोन्स है, ये क्या करते हैं, ये सारी की सारी पावर उस पर्टिकुलर पार्ट को दे देते हैं जिसने अब फंक्शन करना है. अब ब्रेन ने डिसाइड किया, आई विल रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. अब रन अवे भी यू हैव टू रन ऑन वेरी फास्ट पेस. अब द ओल्ड मैन नीड्स एनर्जी इन लेग्स. ओके, तो क्या करेगा, आपने देखा होगा बहुत बार हम जब ऐसी सिचुएशन में हो, सामने किसी को, डॉग को एड्रेस करें सडनली और सामने से कोई आ जाए, तो हम पेल हो जाते हैं, एकदम पीले. तो क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन ने मैसेज दिया और उस ग्लैंड ने, एड्रिनल ग्लैंड ने रिलीज किए हार्मोन्स. अब उसने क्या किया, बॉडी के सारे जो कॉर्टिसल हम जिसको बोल रहे हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, विच प्रोवाइड्स एनर्जी. नाउ दिस कॉर्टिसल इज डूइंग व्हाट, ये सारी की सारी एनर्जी पूरी बॉडी से इकट्ठा करके, जो हाथ को दी हुई थी, फेस को दी थी, हर पार्ट से इकट्ठा करके किसको दे देगा, लेग्स को दे देगा, ताकि आप अपनी पूरी स्पीड से भाग सकें, राइट. तो दिस इज व्हाट इज द फंक्शन एंड यू कैन रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन. और अगर आपने उसे क्या लिया, कोई ऐसी सिचुएशन वेर यू हैव टू कम अक्रॉस और यू डिसाइडेड टू फाइट विद दैट सिचुएशन, तो फिर क्या करेगा ये ग्लैंड, आपको सारी की सारी ताकत उसको फाइट करने में लगाने के लिए हेल्प करेगा. सो सच अ ब्यूटिफुल सिस्टम nature has created inside us. So this is what is the whole answer of this paragraph. So you can just go through in case you find any difficulty. उसके बाद हमने आगे वाले पैराग्राफ में लिखा है, as indicated in 3.2 figure, the stressor which people experience also vary. किस में फ़र्क करता है, इंटेंसिटी कैसी है. अगर एक छोटा सा स्नेक है, नीचे देखा, ऐसे वो बेचारा खुद ही चल नहीं पा रहा, तो इंटेंसिटी कैसी है डेंजर की, वेरी लो. नाउ विल द होल प्रोसेस अकर, जो अभी हुआ था, फाइट ले ले या फ्लाइट भाग पड़ेगा वो उसको देख के, नो, दिस विल नॉट हैपन. ड्यूरेशन कितनी देर का है, वो प्रॉब्लम आपने कितनी देर तक आपको अक्रॉस, यू आर कमिंग अक्रॉस, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, कितना कॉम्प्लेक्स है. इफ इट इज लेस कॉम्प्लेक्स, आई डोंट थिंक सो द होल प्रोसेस विल अकर. और आर यू एबल टू प्रिडिक्ट इट और नॉट. जैसे मौसम के केस में, if it is about to rain, you can predict very well and you can plan your day accordingly. You may leave to school 5 or 10 minutes early, so this will not give you any stress.
सो इट डिपेंड्स अपॉन दीज टाइप ऑफ थिंग्स, कितना क्रॉनिक है, प्रोलॉन्ग्ड है, तो ये सब इन पर डिपेंड करता है। आप कितने हेल्दी हैं, इफ़ यू आर वीक फ्रॉम इनसाइड तो बहुत जल्दी इसको इम्पैक्ट करेगा। ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर। फर्दर इज साइन एंड सिम्टम्स। All right, this is very beautifully explained on the PPT. So let's go through from this and then you can read from your book. Response to sign क्या है, उसके symptoms क्या है, पता कैसे चलेगा the person is in stress. Response to stress varies depending upon personality of an individual. आप कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। Every person has his or her own pattern of stress response. घर में अगर 5 लोग हैं, पांचों में कुछ होंगे जो बहुत चीज़ों को लाइटली सा लेते हैं, इट्स ओके, इट विल हैपन। दूसरा ओ नो 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 ऐसा हो जाएगा, ऐसा। सो इट मीन्स coping ability or the response to the stress actually depends upon what kind of personality you are. Warning signs of stress vary from individual to individual. किसी को वो साइन जो है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, गर्ल्स के मार्क्स एक भी कम हो, 2 भी, तो दे आर अंडर स्ट्रेस. बॉयज आर वेरी हैप्पी इवन इन गेनिंग समटाइम्स 50-60 marks में भी they are very happy and jumping. Either they are not showing that stressful because they know how to handle with it, or they are not even taking that as a stress. So maybe it depends कि आपके warning signs कैसे आते हैं. Physical symptoms क्या क्या involve होंगे, it's given even on the next page very nicely. It can be palpitation, sweating होने लगती है, emotional symptoms होंगे, confusion हो जाएगी, irritability increase हो जाएगी, right? There are certain behavioral symptoms, withdrawal, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएंगे, हम बुलाएंगे नहीं, restlessness, गिरे रहेंगे बेड पे. If any of these symptoms are left unresolved, they may lead to suicide, burnout, a psychological disorder. So they needs to be addressed on time. So here it is written, symptoms of stress, dizziness, pain in chest, heartbeat change हो जाएगी ना, loss of interest in daily activities, withdrawal हो गया, grinding teeth, ऐसे teeth को इस तरह से चिड़चिड़ापन जो कहते हैं जिसको, headache रहना, इरिटेशन, मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन में रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे. सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स. इनको हमने वार्निंग क्या दिया, देयर विल बी फिजिकल साइंस, आपको विजिबिलिटी हो जाएगी कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ तो है, वो गिरा पड़ा है, इधर गिरा पड़ा है, फिजिकल साइंस से. मेंटल साइंस, नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, राइट. इमोशनल एंड बिहेवियरल साइंस विल ऑल्सो, या तो रोए जा रहा है या बिल्कुल चुप है, राइट. बिहेवियरल इरिटेबिलिटी, टीथ का भी हमने पढ़ा था, ग्राइंडिंग टीथ, such kind of signs will tell you that the person is under stress. All right, so these are the signs and symptoms. I'm sorry. Moving further on types of stresses. Okay, this is a very light chapter. Types of stresses in NCERT book class 12 is on page number 55. कितने टाइप के हैं? These are of 3 types. Psychological, physical and environmental, and social stresses, right? Ab we will start with the first one. It's physical and environmental stress. Even in your book it is given as the first one. Okay, so अच्छा, symptoms के लिए जो हमने अभी कवर किया है, अपनी बुक के ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिए. How can these symptoms be asked in the paper? How can you identify a person is under stress? तो आप उसके symptoms बता देंगे. How can you identify a person is under stress? ये आपके पिछले पोर्शन का. अब टाइप्स पे आ जाते हैं. फिजिकल एंड एनवायरनमेंट स्ट्रेस कैसा हो सकता है? ऑलराइट, तो कैसा हो सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड. फिजिकल स्ट्रेसेस आर कॉज्ड व्हेन वी ओवर एक्सर्ट ourselves physically. बहुत मम्मा जिस दिन ओवर काम करती हैं उस दिन हमें पता चल जाता है यार बहुत गुस्से में है, सो लेट्स नॉट गो क्लोज टू हर और डिमांड मोर थिंग्स, सो लेट्स स्टे अवे बिकॉज स्ट्रेस है. लैक अ न्यूट्रिशनल डाइट, अच्छी डाइट नहीं लेना, सफ़र एन इंजरी और फेल टू गेट इनफ, ये हो गया फिजिकल. मतलब जैसा होना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, सो वी फील स्ट्रेन्ड जब हम ओवर एक्सर्ट करते हैं फिजिकली, राइट. ये सब एज इट इज आपकी बुक में लिखा है. एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या है, इसको नोट्स के फॉर्म में आप कॉपी कर लें.
दिस इज एनवायरनमेंट ने दिया ना, तो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, क्राउडिंग, शोर, हीट, समर्स हीट जो है, विंटर, एक्सट्रीम वेदर भी हमें देता है, डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, राइट, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ये सब भी हमें एनवायरमेंटल, ये जो कोविड है इसने बहुत सारे लोगों को एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस देना है या दे दिया है। ओके, अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पे। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के सामने एक आप लाइन लिख लीजिए, दिस इज द इंटरनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। सो आपको पेपर में आ सकता है डिस्कस द इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि ये इंटरनल है। ओके, इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, इसके 4 पार्ट्स हैं, इट इज ऑफ 4, the parts are 4, even in your book it is given, so we'll go to the book after this because it's not written। कौन से? frustration, conflict, internal pressure and social pressure। now what is frustration? book में भी mark कर लो। frustration actually results from the blocking of needs and motives by something or someone, right? so it's blocking my needs, blocking my needs or my motives, my goals। कोई कर रहा है या कोई चीज कर रही है, that hinders us from achieving that goal। so something is coming on my way, it's something like I'm unable to get promotion because of one of my colleague who comes always in between, राइट। सो ये मुझे क्या कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, यार यही बंदा है जो हर बार आकर ऐसे करता है। जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में व्हाट हैपेंस इज यू वांट टू आंसर अ क्वेश्चन एंड एवरी टाइम व्हेन यू फील लाइक गिविंग एन आंसर, एक क्लास में बच्चा होता है ना जो हर बार ही बोलता रहता है क्लास में, आंसर रिप्लाई करता रहता है, तो वो आपको क्या कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो आप इस तरह से इरिटेट होते हैं। सो देयर कुड बी नंबर ऑफ कॉजेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, नॉट वन, इट कुड बी, हाँ, फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशली हम जो है कुछ कैटेगरीज को बराबरी नहीं दी जाना। और क्या हो सकता है, लो ग्रेड्स इन स्कूल, एवरी टाइम गेटिंग लो ग्रेड्स इन स्कूल कैन ऑल्सो फ्रस्ट्रेट अस। कन्फ्लिक्ट हमेशा 2 चीज़ों में होगा, इट मे अकर बिटवीन 2 और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स और मोटिव्स। 2 इनकम्पैटिबल, कैसे, पढ़ाई करूं कि फ़ोन चलाऊं, अरे बाप रे, इतना ज़बरदस्त कन्फ्लिक्ट है अंदर, because both I am feeling is important. Inside I know your studies are very very important, but yes, Netflix is calling me, games are calling me, so there's a conflict happening in between between myself। जॉब इसमें जब आप आगे फर्दर स्टडीज़ करें या जॉब करें, स्टडी करें या जॉब करें, इसमें कन्फ्लिक्ट आएगा। सो ये से कहते हैं कन्फ्लिक्ट। इंटरनल प्रेशर क्या है, it is basically from inside, right? अब जैसे क्या होता है, कुछ लोगों को सब कुछ करने का, परफेक्ट करने की आदत होती है, मम्मियों को भी घर में होता है, सामान यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों नहीं रखा, सो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देगा। सो बिकॉज दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, सो दैट्स इंटरनल प्रेशर। फिर जो नहीं होता फिर वो डिसअपॉइंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम मेरा मतलब शी कम्स अंडर स्ट्रेस। सोशल प्रेशर क्या होता है, सोशल प्रेशर जैसे पेरेंट्स का, टीचर्स का प्रेशर, यू शुड डू दिस, नो यू शुड बिकम डॉक्टर, यू शुड बिकम एन इंजीनियर, ये कौन सा है, सोसाइटी का प्रेशर, एक्सेसिव डिमांड फ्रॉम पीपल अराउंड अस, दे ऑल्सो गिव साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। सो आप समझ गए, दीज आर 4 पार्ट्स, आई रिपीट, फ्रस्ट्रेशन, conflict, internal pressure and social। Now come to the social pressure, social stress. So this I will cover in the next video because of shortage of time. Let me see, I think I can cover this। Social stress क्या है, these results from our interaction with other people such as, ये social है ना, death, illness in the family, strained relationships, झगड़ा हो गया पड़ोसियों से, ये सब हमें, अटेंडिंग अ पार्टी कुड बी स्ट्रेसफुल फॉर अ पर्सन हु इज एन इंट्रोवर्ट, उसको बोल दो आपकी भैया पार्टी पे जाना है, और एक पार्टी लवर को बोलो, उसको बोलो तुम घर में रहो, तो ये भी सोशल स्ट्रेस है। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सो यू मस्ट कॉपी लाइक दिस ओनली एंड देन यू शुड राइट इट डाउन, दीज पॉइंट्स दे आर वेरी वेरी गुड फॉर यू, और इनके आगे आप 1-1 2-2 लाइन्स लिख लीजिए, राइट। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।